Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So today we will start our new chapter which is about cyber threats and security. So without wasting any time, let's start. So cybercrime. Now what is the meaning of cybercrime? Cybercrime encompasses any criminal act done with the help of computer or any electronic device with the help of internet is cybercrime. इसका मतलब ये है कि जैसे आपने क्राइम के बारे में सुना होगा, अगर कोई भी एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है वो क्राइम आपका जो है कहलाता है, चाहे उसमें कोई रॉबरी हो या किसी का मर्डर कर दिया जाए, वो सब क्राइम्स के अंदर आता है। लेकिन साइबर क्राइम का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी क्राइम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से किया जा रहा है और उसमें इंटरनेट का यूज़ भी किया जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम. Now, cyber crimes can be divided into three main categories. The first one is crime against an individual person. Second one is crime against property. And third one is crime against an organization or society. So today we will discuss crime against an individual person and crime against property. Crime against an individual person. The offense that cause or attempt to cause harm or threat to an individual come in this category. These crimes can be committed in the form of email spoofing, cyber stalking and cyber bullying. So जो भी क्राइम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के किसी एक पर्सन के ऊपर किया जा रहा है वो क्राइम आपका इस रेंज में आता है और इसके थ्री पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं: ईमेल स्पूफिंग, cyber stalking and cyber bullying. Now email spoofing is hoax or misleading. In it, our receiver of a message is fooled into believing that the message received by him is from a trusted source, which actually is not so. The message is bugs when a user clicks on the link that is falsely provided by the sender. The malware or virus enters into the system of the user. इसका मतलब ये है कि आपको ईमेल के थ्रू कोई भी रॉन्ग वेबसाइट से कोई भी लिंक सेंड किया जा सकता है। ऐसे ही आप उनके दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस एंटर कर लेगा। अब ये किसी भी तरीके से आपको सेंड कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस है एंड देयर इज़ अ लिंक ऑफ एंटीवायरस। सो आप जैसे ही उसको एज अ एंटीवायरस समझ के डाउनलोड करेंगे, तभी आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस की जगह वायरस इंस्टॉल हो जाएगा. So this is a part of email spoofing. Now the next one is cyber stalking. In it, a attacker harasses a victim through emails, social media, chat rooms, blogs, instant messaging, etc. A stalker can be an online stranger or a person known to the targeted person. इसका मतलब ये है कि साइबर स्टॉकिंग के अंदर इस टाइप का क्राइम आपका आएगा। जो विक्टिम होगा उसको ईमेल के सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी चैट रूम, ब्लॉग या कोई भी मैसेजेस अगर कर रहा है और उसके थ्रू उसको हैरेस किया जा रहा है, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग करने वाला पर्सन आपका कोई अपना जानने वाला भी हो सकता है और कोई स्ट्रेंजर पर्सन भी हो सकता है. सो दिस इज साइबर stalking. Now the next one is cyberbullying. In it, an act of harming or harassing through information technology in a deliberate manner. This include insulting remark and threatening messages sent by emails, spreading rumors about the persons either by email or social networking sites, posting embarrassing photos and videos to hurt the person, making derogatory remarks against जेंडर, रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी. इसका मतलब ये है, साइबर बुलिंग का मतलब ये है, इसमें भी आपका साइबर स्टॉकिंग की तरह अगर किसी को हैरेस किया जा रहा है, लेकिन हैरेस करने का तरीका अलग हो सकता है. साइबर स्टॉकिंग में किसी भी पर्सन को उसको डायरेक्ट मैसेज करके उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन साइबर बुलिंग का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने कोई फ़ोटो अपना अपलोड किया है फेसबुक पर और आप उसमें कोई ऐसा कमेंट लिख देते हैं जिसके थ्रू उसको बुरा लगे, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग. ये भी आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट या ईमेल के थ्रू हो सकता है. अगर आप
पर्सन की कोई भी फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को कोई लीक कर रहा है, सो दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग। और उसके ऊपर कोई भी रिलीजन रिमार्क या नेशनैलिटी को लेकर कोई भी रिमार्क अगर किया जा रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। In real life, you hear of stealing or robbing of one's property. In cyber world also, criminal looks for opportunity to steal or rob through the internet. They can steal a person's bank detail and withdraw money from his account, misuse credit card of a person, spoil the system of an organization through malicious software to gain access to it. इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने रियल वर्ल्ड में भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्राइम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन वो आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट साइबर प्रॉपर्टी, सो साइबर प्रॉपर्टी आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपका फेसबुक का अकाउंट इज़ योर साइबर प्रॉपर्टी, या आपकी कोई अपनी वेबसाइट है, दिस इज़ ऑल्सो अ साइबर प्रॉपर्टी। और कोई भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं या आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स है वो भी आपके इसी प्रॉपर्टी के अंदर आती है। सो अगर कोई पर्सन आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या आपके जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, सो दिस इज़ अ क्राइम ऑफ प्रॉपर्टी। Now there are some parts in cyber property. The first one is identity theft. To the act of stealing and misuse of someone's personal information. The stolen information generally includes a person's name, date of birth, account number, credit और डेबिट कार्ड नंबर, ATM पिन। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि आपने कोई शॉपिंग करी ही नहीं है लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड का बिल काफ़ी ज़्यादा आने लगे, या आप कॉलिंग कर ही नहीं रहे हैं लेकिन आपके कॉलिंग का बिल 5-5, 6-6 हज़ार रुपये आने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? सो इसका मतलब यही है कि किसी पर्सन ने आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को यूज़ किया है किसी भी मिसयूज़ करने के लिए। वो आपकी किसी भी पर्सनल आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, आपके ईमेल अकाउंट को, आपके बैंक अकाउंट को, या किसी भी तरीके की आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसको वो लोग ईज़िली हैक कर लेते हैं और हैक करने के बाद उसका मिसयूज़ करते हैं। वो आपकी आइडेंटिटी से कोई भी क्राइम भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। Now next one is phishing. It is an act of sending an email to a user, misleading him to believe that it is a firm or trusted person or organization. The user is asked to visit a website in which he is asked to update or validated his personal details, such as the user's name, password and credit card details. In this way, the operator of the fake website commit crimes in your name after stealing your identity. इसका मतलब ये है कि फिशिंग में जो यूज़र है उसको फंसाया जाता है। मतलब कि आपके पास कोई भी ईमेल आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर ऐसा ईमेल आता है कि आपकी जो अकाउंट है, कोई भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक है, कि फेसबुक का पासवर्ड किसी दूसरे पर्सन ने चोरी कर लिया है और आप जल्दी से अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करिए। सो वो नकली एक फ़ेक वेबसाइट आपके पास आएगी और आप उस फेक वेबसाइट को असली समझ के उसमें अपना फेसबुक का आईडी और पासवर्ड फिल कर देंगे। या ऐसे ही अगर कोई आप पे मैसेज आता है कि आपके बैंक के थ्रू ये मैसेज आया है कि आपके जो अकाउंट है वो कोई मिसयूज़ कर रहा है, सो आप अपना जो भी अकाउंट नंबर है या अकाउंट से रिलेटेड, या आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। सो आप लोग क्या सोचते हैं कि ये वेबसाइट उस ट्रस्टेड बैंक की है और आप उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हैं, लेकिन जो हैकर होता है वो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उस वेबसाइट की हेल्प से आपके थ्रू ही एंटर करा के उसको स्टील कर लेता है। सो दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फार्मिंग.
In this type of attack, a piece of malicious code is installed on a computer or a server which misdirect the user to fraudulent website without their knowledge in order to obtain personal information such as password or account number. सो फार्मिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिशिंग, ये भी एक फिशिंग का पार्ट ही है, लेकिन इसका वर्क करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि फिशिंग में आपके पास कोई भी ईमेल आता है और वो आपकी जो है इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, सेम ऐसे ही फार्मिंग में भी कुछ फ्रॉड वेबसाइट्स होगी जो कि असली वेबसाइट के नेम से नकली वेबसाइट बना के रखेंगे। सो आपके कंप्यूटर में अगर हैक हो चुका है और आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी एक ट्रस्टेड वेबसाइट को, किसी भी बैंक की वेबसाइट को लॉगिन किया या ओपन किया, सो वो लोग आपकी वो ओरिजिनल वेबसाइट को ओपन ना करके जो फेक वेबसाइट होगी उसको ओपन कर देते हैं और आप उसको एक ओरिजिनल वेबसाइट समझ के यूज़ भी करते हैं। सो वो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते रहते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर सम टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. So that is it for today, students. Stay healthy, stay safe, and thank you so much.